This is first chapter, chapter 1, percentage, part 1. In this chapter, we will study in first video we will study basic concepts of percentage. Percentage means what? We have to calculate any value out of 100. Percentage means you have to calculate any value out of 100 per 100. Now, first of all, see here percentage, how to convert percentage value into fraction. Percentage value into fraction conversion. Percentage value into fraction. To convert percentage into fraction, remove the percent sign and divide the numeric value by 100. If it is given 25%, means 25 divided by 100. Remove the percent sign and divide by 100, you will get fraction value. If it is 0.5%, then 0.5% remove the percent sign again and divide by 100. If we will cancel the decimal sign, after the decimal there is one digit, then put 10 here. 5 1 ja 5, 5 2 ja 10, it is 1 by 200. Now if you have to convert fraction value into percentage, fraction into percentage, fraction to percentage, means multiply the fraction value with 100. Means if it is given 3 and 1 by 2, and if we have to convert in percentage, 3 2 ja 6 plus 1, it is 7 by 2, and multiply by 100, we will get 350%. जब भी फ्रैक्शन को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो परसेंट साइन को रिमूव करना है, 100 से डिवाइड करना है, वी विल गेट द फ्रैक्शन वैल्यू. और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, वी विल गेट द परसेंटेज वैल्यू. नाउ we will start with concept on percentage. First concept is to express the given quantity x as a percentage of another quantity y. We write it as x by y multiplied by 100. Like first example on this concept, 20 is what percentage of 50? 20 is what percentage of 50? Means x value is 20, y value is 50. 20 जो है 50 का कितना परसेंटेज है, तो x हमारा 20 हुआ, y हमारा 50 हुआ. 20 अपॉन 50 मल्टीप्लाई बाय 100, x बाय y मल्टीप्लाई बाय 100, 50 टू जा 100, 40%. मीन्स 20 जो है 40% है 50 का. सिमिलरली 28 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 70? मीन्स x इज 28, y 70. 28 जो है 70 का कितना परसेंट है, तो x हमारा 28, y हमारा 70, x अपॉन y मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 7 4 जा 28, मीन्स 40%. 28 जो है हमारा 40% है 70 का. व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 84? मीन्स अगेन x इज 84, y इज 12, and x upon y 84 upon 12 multiply by 100. 12 7 जा 84, 700%. मीन्स 12 का 700% हमारा 84 है. नाउ second concept is percentage increase. Second concept is percentage increase is increase value upon original value multiply by 100. If value of 200 becomes 240, then what is the percentage? Increase value is अभी 200 हमारा 240 हो रहा है, 200 जो है 240 हो रहा है, तो increase value is 240 minus 200, it is 40. Now percentage increase क्या होगा हमारा? इंक्रीज वैल्यू इज 40, ओरिजिनल वैल्यू 200 हमारा 240 हो रहा है, मीन्स ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू जो है 200 है, एंड मल्टीप्लाई बाय 100, डबल जीरो कैंसल, 22 जा 40, 20%. मीन्स 200 अगर 240 हो रहा है तो कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ? 20% का
इंक्रीज हो गया, 300 बिकम 330, व्हाट इज द परसेंट, अगेन इंक्रीज वैल्यू कितने का इंक्रीज हुआ है हमारा यहाँ पे, आवर इंक्रीज वैल्यू इज 330 minus 300, it is 30. Now percentage increase में increase value 30 divided by original value, initial value is 300 multiply by 100, double zero cancel, 3 10 जा 30, 10% में 300 अगर 330 हो रहा है तो हमारा इंक्रीज परसेंटेज जो है 10% आ गया. नाउ परसेंटेज डिक्रीज, सिमिलरली जैसे परसेंटेज इंक्रीज निकाला हमने, वैसे परसेंटेज डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इन 200. फॉर एग्जाम्पल ऑन दिस इज 250 बिकम्स 200, अगर 250 200 हो रहा है तो डिक्रीज वैल्यू हमारा कितने का है, 250 माइनस 200, ये हो गया 50, डिक्रीज वैल्यू 50. तो परसेंटेज डिक्रीज वैल्यू कितने का कमी हुआ, 50 का. ओरिजिनल वैल्यू हमारा 250 था, 250 कम हो रहा है, कम होके 200 हो रहा है, मीन्स 250 बिकम्स 200. इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू इज 250 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 कैंसल, 25 2 जा 50, 2 10 जा 20, परसेंटेज डिक्रीज इज 200. अगर 250 200 हो रहा है तो 20% का हमारा डिक्रीज हो गया. 540 बिकम्स 476, अगेन डिक्रीज वैल्यू इज 540 becomes 486, then decrease value is 540 minus 486, it will be 54. Then percentage decrease is 54 divided by original value, initial value is 540 multiply by 100, ये 10 से कैंसिल होगा, 1 0 कैंसिल हुआ, परसेंटेज डिक्रीज हो गया हमारा 10%. इफ योर वैल्यू 540 बिकम 486, देन परसेंटेज डिक्रीज इज 10%. नाउ concept number next concept is when any number x is increased by y%, then new number will be 100 plus y divided by 100 multiply by x. Means if the value 200 is increased by 15%, means y is 15 and x is 200. 200 जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है 15% से, तो न्यू नंबर जो होगा, न्यू नंबर बिकम्स 100 plus y means 100 plus 15 divided by 100 multiply by x 200, double zero cancel, it will be 230. मीन्स अगर 15% का इंक्रीज हो रहा है 200 में तो हमारा न्यू वैल्यू जो होगा 230 होगा. सिमिलरली फोर्थ कॉन्सेप्ट, अगर वो डिक्रीज हो रहा है y% से, मीन्स जैसे 200 इज डिक्रीज बाय y 20%, मीन्स x इज 200 y is 20, then new number will be 100 minus y, 100 minus 20 divided by 100 multiply by 200, means it is 80. 100 minus y divided by 100 multiply by x. तो 100 अगर हमारा 200 डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो न्यू नंबर कितना होगा, तो 100 माइनस वाई, 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाय fourth concept is when a number is decreased by y%, then new number will be 100 minus y divided by 100 multiply by x. 100 minus 20 divided by 100 means 80 to जाओ, it will become 160. 80 multiply by 2, it will become 160. मीन्स अगर 200 डिक्रीज हो रहा है 20% से, तो नया वैल्यू जो होगा हमारा 160 हो जाएगा.
Next concept, if x is a% more than y, then y is a upon 100 plus a multiplied by 100% less than x. Means 240 20% more than 200 means x is 240, a is 20 and y is 200. अगर 240 20% ज़्यादा है 200 से तो 200 कितने परसेंट कम है 240 से. तो जनरली बच्चे क्या करते हैं 20% ही लिख के आते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है और ऑप्शन में भी 20% रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है. इनिशियल वैल्यू हमारा चेंज होता है. our initial value will change in both the case. That's why we have to use this formula. 240 20% more than 200 means x is 240, a is 20, y 200. Then y means 200 age 20 upon 100 plus 20 multiply by 100% means it will become 20 into 100 divided by 120. 26 ja 120, 2 3 ja 6, 250 ja 100 means 50 by 3% less than 240 means y is 200, 200 is 50 by 3% less than 240. Similarly, if x is a% less than y, then y equal to a upon 100 minus a multiplied by 100% more than x. वही क्वेश्चन का अपोजिट लिया हमने ताकि आंसर भी हमारा यही 20% आना चाहिए नीचे के क्वेश्चन से. तो अभी न्यू x इज आवर x वैल्यू इज 200, a इज 50 upon 3 and y is 240. Then y or 240 is a upon 100 minus a means 50 upon 3 divided by 100 minus 50 upon 3 multiply by 100% means 50 upon 3 नीचे कुछ नहीं है तो डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज 300 minus 50 divided by 3 into 100%. 3 cancel. 50 divided by 250 multiply by 100%. 55 जा 5 2 जा 20%. अभी हम देख सकते हो ऊपर भी वही था, उसी का अपोजिट क्वेश्चन लिया 20% मोर था, तो सिमिलरली 20% मोर देन 240, 20% मोर देन 200. Now next concept, if the value of a number is first increased by a% and later decreased by the a%, में a% से इंक्रीज हुआ में सेम परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और फिर से सेम परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट जो हमारा रहेगा हमेशा ऑलवेज डिक्रीज होगा. मीन इफ द सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% later decreased by 20% means our a value is 20 and it is percentage increase or decrease means हमेशा परसेंटेज डिक्रीज होगा. सेम परसेंट से इंक्रीज हो रहा है और देन सेम परसेंट से डिक्रीज हो रहा है, तो नेट इफेक्ट विल बी परसेंटेज डिक्रीज. कितने परसेंट का डिक्रीज होगा सैलरी में, तो a अपॉन 10 स्क्वायर परसेंटेज मीन्स आवर a वैल्यू 20, 20 अपॉन 10 स्क्वायर परसेंटेज मीन्स कितना हो जाएगा 0 0 कैंसल 4% डिक्रीज. कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट किया हमने और आंसर हमारे पास है. सिमिलरली इफ द वैल्यू इज फर्स्ट इंक्रीज बाय x% एंड देन डिक्रीज बाय y%. अभी क्या है, पहले x डिफरेंट परसेंटेज है, वहाँ सेम परसेंटेज था, यहाँ डिफरेंट परसेंटेज है. तो अगर पॉजिटिव आया रिजल्ट में तो परसेंटेज इंक्रीज होगा, निगेटिव आया तो परसेंटेज डिक्रीज होगा. जैसे इफ द सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 18% हमारा x इज 18, y 12, पुट द x एंड y वैल्यू इन above formula. 18 minus 12 minus 18 into 12 divided by 100, तो कितना आ गया 6 माइनस 2.16 कितना आया ये 3.84% प्लस आया तो इंक्रीज होगा 3.84% इंक्रीज. सिमिलरली अभी नेक्स्ट, इफ द सैलरी ऑफ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%, x इज 12, y is 15, 12 minus 15 minus 12 into 15 divided by 100 क्या आ रहा है -3. 1 minute.
-3 1.8 मीन -4 माइनस जैसे ही आया मीन्स 4.8% डिक्रीज, माइनस आया तो डिक्रीज, प्लस आया तो इंक्रीज, सेम परसेंटेज रहा तो ए बाई 10 स्क्वायर परसेंटेज फॉर्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इफ द वैल्यू इज इंक्रीज सक्सेसिवली बाय x% और y%, मीन पहले x% से इंक्रीज हुआ और देन y% से, तो ओवरऑल इंक्रीज होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100%। मीन्स x है हमारा 15, y है हमारा 12, पुट द x एंड y वैल्यू इन आवर फॉर्मूला, वी विल गेट 27 प्लस 1.8 मीन्स 28.8% इंक्रीज हो गया हमारा वैल्यू। नाउ नेक्स्ट, अगर डिक्रीज हो रहा है सक्सेसिवली x% y% से, तो आवर फॉर्मूला इज -x माइनस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। मीन्स अभी x हमारा 15 है, अगेन y 12 है, मीन्स -15 -12 प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 100 -27 प्लस 1.8 -25.2% डिक्रीज, मीन्स 25 माइनस आया 25.2% डिक्रीज। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, if the radius of circle is increased by x% or side of a square is increased by x%, then percentage increase in area डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करेंगे, हमारा रिजल्ट आएगा x प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100। अभी सर्कल का रेडियस जो है 4% से इंक्रीज हो रहा है, मीन्स 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 100, 8 प्लस 1.6 कितने परसेंट का हुआ, 0.1 मिनट 0.16, तो 8.16% increase, directly we will get 8.16% increase. Next, if the length and breadth of rectangle is increased by x% or y%, length और breadth x% y% से increase हो रहा है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाय, अभी रेक्टेंगल का लेंथ इंक्रीज हो रहा है 10% से, x 10 हो गया हमारा, ब्रेथ इंक्रीज हो रहा है 10% से, y हमारा 10 हो गया, और प्लस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, अगेन 20, ये 0 0 कैंसल, 21% इंक्रीज इन एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। नेक्स्ट, प्राइस ऑफ आर्ट, अभी किसी भी प्रोडक्ट या आर्टिकल का प्राइस बढ़ जाता है 10% 20% से, तो हमें क्या कर, सेम अगर पैसे सेम रुपीज हमारे पास है तो कंजम्पशन को कम करना रहता है, तो कंजम्पशन को कितने % से हम कम करेंगे ताकि उसके एक्सपेंडिचर में हमारा बढ़ोतरी ना हो, प्राइस उतने ही प्राइस पे हम कितना क्वांटिटी रिड्यूस कर पाएंगे। तो डायरेक्टली फॉर्मूला है उसके लिए, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो r इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस आर मल्टीप्लाई बाय 100, और अगर प्राइस डिक्रीज हो रहा है किसी प्रोडक्ट का तो क्वांटिटी हम ज़्यादा मिलेगा हमको उतने ही पैसे में, तो कितने % ज़्यादा मिलेगा क्वांटिटी, तो ये फॉर्मूला है। तो हियर r इज 25, पुट द r वैल्यू इन आवर फॉर्मूला, वी विल गेट 25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 प्लस 25, देन 25 टू 100, इतने % हमें, 5 से ये कैंसिल हुआ, 5 2 जार 10, 0 मीन्स 20% जो है क्वांटिटी में कम करना होगा हमें, तो उतने ही पैसे में हम 80% क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, 20% क्वांटिटी रिड्यूस करना होगा, कंजम्पशन 20% हमें खर्च को, और ये क्वांटिटी को 20% कम। अभी 1 लीटर पेट्रोल की जगह हम 800 ml ही पेट्रोल लेंगे तो हमारा उतने ही पैसे में काम चल जाएगा। अभी नेक्स्ट, सिमिलरली अगर अब प्राइस कम हो जाता है तो हमको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, तो कितने % ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा, तो इस फॉर्मूला में आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, मीन्स यहाँ आर 20 है, आर अपॉन 100 माइनस आर मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आर इज 20, 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 100, क्या आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 24 जा 80,
4 2 जा 8, 4 5 जा 20 मीन्स 25% ज़्यादा सामान ज़्यादा। अभी शुगर 25% ज़्यादा हमें मिलेगा। अभी 1 kg की जगह 1.25 kg मुझे शुगर मिलने वाला है उतने ही पैसे में। तो ये या फर्स्ट वीडियो में इतने कॉन्सेप्ट कवर किए हमने। बाकी के कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। और जितना भी हो सके लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो भी लगे और क्या जो भी टॉपिक चाहिए उस वीडियो का, उस टॉपिक का वीडियो आपको मिलेगा पर्टिकुलरली, आप बतलाएं।